अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोना शेयर हाउ आई प्रिपेयर फॉर रमदान। टू स्टार्ट फॉर रमदान प्रिपरेशन पहले मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ, जो कि दो तरह की होती हैं। एक ग्रॉसरी लिस्ट वो होती है जो मुझे पूरे मंथ की आइटम्स चाहिए होती हैं इन बल्क, और दूसरी लिस्ट होती है जो कि डेली बेसिस पे बन रही होती है। दैट इंक्लूड्स डेयरी आइटम, fruits and vegetables and all the other stuff. And for that I usually consider how much space I have in my kitchen, and most importantly how much space I have in my fridge and freezer. So I'm in supermarket and I have purchased all the items that I want for the Ramadan preparation. If you are living abroad, then you have to add a lot of effort for the Ramadan preparation, because there will be very limited option for you and you have to consider what is halal and what is not halal. So one thing that I want to share at the moment is, if you are living in Europe, then these are the tortillas. The people who don't know how to cook roti and how to make parathas, then they can purchase it from any supermarket. I purchased some frozen items and some other stuff that I will show you at the end of this video. As I'm living in Europe and I'm also working, so I really need to do some pre-Ramadan preparation steps so I can be like more productive during Ramadan. I believe if you're in Pakistan or if you're in India with your families, with Muslim community, then you don't have to do these pre-preparation steps a lot, because आपकी family आपके साथ होती है, आप task divide कर लेते हैं. In my case, I usually do the pre-preparation steps. Number one idea that you can also follow is to prepare the sauces. Here I'm making the coriander and mint chutney. It's very easy and I think everybody should have it in the refrigerator for Ramadan, because it's full in nutrients and most importantly it's really good for the digestion. This pudina chutney is so versatile and refreshing that it can be paired with almost any dish. For this chutney, I use dhania pudina, sabaz mirch or lesan. Here I'm using lesan paste, but I strongly recommend you to use जो लहसुन के जवे होते हैं fresh, because आप उसको ज़्यादा देर तक store कर सकते हैं. Here I'm using grinder because I want a homogeneous paste, but if you don't have grinder at your home, तो आप इसको manually भी पीस सकते हैं. बनाने के बाद the most important thing is to store for a longer time. आई एम स्टोरिंग दिस पुदीना चटनी इन अ जार, जो कि मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी और ऑलमोस्ट मैं 2.5 वीक्स तक इसको यूज़ कर सकती हूँ वेन एवर इट रिक्वायर्ड. सेकेंड रमदान प्रिपरेशन आइडिया इज़ टू प्रिपेयर शामी कबाब इन एडवांस. ये शामी कबाब की रेसिपी मेरी ममा की है, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए तो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाके इसको सीख सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली रियली अमेजिंग. आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटन कीमा कबाब, जो कि मैं फिल्म नहीं कर सकी, बट इट्स अनदर आइडिया फॉर यू. आप वो भी बना सकते हैं और अपनी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें. फॉर स्टोरेज आई एम यूजिंग जिप लॉक बैग्स. ये बैग्स आप किसी भी सुपरमार्केट, किसी भी स्टोर से ले सकते हैं. दीज बैग्स आर सेफ फॉर द फूड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये आपके फ्रीज़र के अंदर बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और आप इन बैग्स को रीयूज़ भी कर सकते हैं. In Europe, these bags are very cheap, so I don't prefer to reuse. I usually buy a new one for the storage. Third pre-Ramadan preparation idea is to make spring roll in advance. और spring roll की जो ये पट्टी है, आप इसको समोसा पट्टी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. I prepared it at home क्योंकि मुझे यहाँ मार्केट से नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान में आपको ईज़िली ये मार्केट से मिल जाती हैं. स्प्रिंग रोल की फिलिंग के लिए आई एम यूजिंग कैरेट्स, बंद गोभी, शिमला मिर्च, उबले हुए आलू और उबला हुआ चिकन. इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्रेट कर लिया और मैं अभी पोटैटोज़ को मैश कर रही हूँ. और मसाला जात में आई जस्ट एडेड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. टू मेक योर स्प्रिंग रोल फैंसी यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ एंड यू कैन ऐड ऑलिव्स. इट डिपेंड्स ऑन यू मेनली, वट एवर यू लाइक. स्प्रिंग रोल और समोसा हमारे रमज़ान की एक स्पेशल डिश होती है. पाकिस्तान में तो ये हर जगह से मिल जाते हैं, बट घर में बने हुए हों तो एक तसल्ली रहती है कि although it's not healthy, but you know, आप एक इत्मीनान रहता है कि that it's homemade, so it's more safer than purchasing it from outside. Another idea is to make आलू बुखारे की चटनी, which is very special. और आप इसको समोसों के साथ, स्प्रिंग रोल्स के साथ, किसी भी तरह की चाट के साथ, दही बलों के साथ यूज़ कर सकते हैं. I am storing this chutney in a jar that I am going to keep in the fridge.
and I think I can use this for 2.5 weeks easily. Now I'm going to share many more ideas with you. So I purchased all these items from the grocery shop. और अगर आपके पास ये सब कुछ अपने घर में होगा तो आप अपनी कुकिंग को मज़ीद आसान बना सकते हैं during Ramadan. If you are living abroad and if you are a student or if you are working other than managing home, then I think you should have these plain frozen parathas in your freezer. Other than that, you should have some boiled vegetables in your freezer. आप मटर उबाल के रख सकते हैं, आप सफ़ेद चने उबाल कर रख सकते हैं. वो फ्रूट्स तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़, तो आप उनको फ्रोज़न फॉर्म में ले लें या फिर घरों में आप बॉक्सेस के अंदर उनको फ्रीज़ कर लें एंड लेटर यू कैन यूज़ दैम फॉर हेल्दी शेक्स फॉर रमदान. एक आइडिया जो कि सबसे बेस्ट है इज़ टू यूज़ हनी और शक्कर ड्यूरिंग रमदान. वाइट शुगर को प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि हम जो ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी शुगर होता है. सो प्लीज़ अवॉइड शुगर इनटेक एंड ट्राई टू ईट हेल्दी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन फूड. रमदान हो और पापड़ी चाट या गोलगप्पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए I purchased this golgappa fry with masala. Freezer is your best friend in Ramadan. So I advise you to please clean your refrigerator before adding all this stuff inside. During Ramadan, you can also add olives in your diet because olives are very high in vitamin E. आप इसको एग ऑमलेट्स के अंदर डाल सकते हैं. You can add it in the salads. It's up to you how you want to eat it. You can also make ginger garlic paste in advance to save your time in the kitchen. जब हम रमदान की बात करते हैं सो आई थिंक ड्रिंक्स के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट इज़ बादाम का शरबत, जो कि बहुत अच्छा होता है और इसकी अफादियत काफ़ी ज़्यादा है. अदर देन दैट यू कैन आल्सो मेक वाटरमेलन ड्रिंक, जो कि सीजनल फ्रूट है गर्मियों का. तो तरबूज का जूस पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. आखिर में आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमदान मुबारक. दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप इन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.